أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. کیا حال؟ میں ٹھیک ہو؟ صحیح. پڑھیں، شروع کریں. آپ لوگ بولو ذرا. ہلو. ہاں ہاں ٹھیک ہے پڑھیں. آواز ریپیٹ ہو رہی تھی اس لیے میں نے کہا چل پڑھنا شروع کریں. الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار. عن انس ان غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بالموت فدعاه إلى الإسلام فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ٹھیک ہے صحیح. ریان آپ پڑھیں گے؟ جی جی الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بالموت فدعاه إلى الإسلام فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. تو یہ جملہ کیا بنے گا یقولو کا؟ یقولو کا یہ جملہ کیا بنے گا یہ جو آ رہا ہے؟ الحمدللہ وہ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ تو ہے. دیکھو الحمدللہ یہ مقول القول. ہاں اس طرح جو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوتا ہے نا جیسے اتے ابل قاسم تو یہاں بھی کالا آ رہا ہے نا تو کالا کے بعد کوئی جملہ اس طرح لکھا ہو تو وہ کیا بنتا ہے مقول القول بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں دو جملے آ رہے ہیں جو کالا کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور تو کوئی نہیں آیا کالا آیا ہی نہیں نا. تو جہاں بھی کالا آئے گا وہاں پہ انورٹڈ کاماز میں کچھ ڈائلاگ ہوں گے جو کہ مقول القول ہوتے ہیں اور وہ کالا کے لیے کیا بنتے ہیں مقول القول بن کے کیا بنتے ہیں مفعول مفعول بنتے ہیں. چلیں اب یہاں سے پڑھتے ہیں شرع المفرداتی. ٹھیک ہے یہ کون سا مرکب بن رہا ہے شرع المفرداتی مرکب اضافی. آگے پڑھیں. الغلام الصبي حين يقارب سن البلوغ غلمان. غلمان. جیم کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ غلام کا پرولر ہے یہ. ٹھیک ہے جمع ہے. جہاں پہ بھی جیم آئے گا تو وہ پرولر کے لیے ہوگا اور یہاں پہ کیا ہے یہ میننگ ہے اس کا الغلام کا. الصبیو جو ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے. چھوٹا بچہ کتنا بڑا؟ بہت چھوٹا نہیں. ہی نہ یقارب سن البلوغ. ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے آپ کے کیا نام ہے رضوان کی عمر کا کوئی بچہ ہو نا تو وہ کیا ہوتا ہے غلام ہوتا ہے. اس کو غلام کہتے ہیں. اس کی جمع غلمان ہوتی ہے. غلام کا مطلب یہاں سلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی غلام کا مطلب ہے لڑکا. ہینا یقارب سن البلوغ. آگے پڑھے. خدم خدم فلانا
يخدم ويخدم हम्म, قام بحاجته فهو خادم وهي خادم وخادمة جيم خدم وخدام والمصدر خدمة मस्तर क्या होगा, खिदमतुन होगा। खद क्या है, माजी क्या है, माजी क्या है, खदमा। ठीक है, हा दाल मीम रूट वर्ड है। खदमा माजी है, यखदिमु या यखदुमु, दो अबवाब से आ रहा है। खदमा यखदिमु होगा तो कौन सा बाब होगा? خدم يخدم ضرب يضرب और खदमा यखदुमु होगा तो क्या है? نصر ينصر नसर यंसुरु। अच्छा, और खादिमुन क्या है? خادم اسم فاعل इसमुल फाइल है। ठीक है, खादिमतुन क्या है? वो भी इसमुल फाइल ही है ना, اسم الفاعل मुअन्नस। और खदमुन क्या है? ये जमा है, جمع प्लूरल है। खुदामुन भी क्या है? ये जमा है। मस्दर खिदमतुन है। खदमा यखदुमु या यखदिमु खिदमतुन मस्दर है। तो मस्दर जो होता है वो नाउन होता है, ये भी नाउन होता है, इस्मुल फाइल। ठीक है, मफूल के वजन पे क्या बनेगा? खा दाल मीम। मखदूम के वजन पे इस्मुल मफूल क्या बनेगा? मफूल के वजन पे डाले ना इसको, مخدوم मखदूम बनेगा। चले आगे क्या है? الطاعون अता आ, أطاع अता أطاع उन था, क्या था? अता आ ही था, अता आ था। हदीस में अता आ था, हमने पढ़े ना, أم अते भी पढ़े ना हमने। और जी अता आ यहाँ पे आया नहीं है, लेकिन अता आ इसका ये तो फिल अमर है ना, अते, है ना। जी और अता आ नहीं आया यहाँ पर, तो ये उसका माजी है। हाँ, कहाँ गया ये? रूट वर्ड क्या होगा इसका? दोनों में से कोई बात कर सकते हैं। أم रूट वर्ड क्या طاء है? ता, ता, واو عين वाव ऐन। ठीक है, अब इसको जब बाब इफ़ाल में डालेंगे तो क्या बनेगा? अफ अला के वजन पे बनाओ, أتوا अतवा आ। जब अतवा आ बन गया तो अब क्या करेंगे हम? अता आ कैसे बनेगा? अतवा आ कैसे बनेगा? अता आ, أم सो ज़बर पीछे दे देंगे और वाव को अलिफ में चेंज कर देंगे वाव को सुकून में चेंज। जी वाव ये स्टेप करने के बाद अलिफ में चेंज करेंगे। पहले इसको सुकून देना पड़ेगा। उसका बोझ आपने पीछे कर दिया, लगेज, और उसके बाद उसको सुकून दे दिया। सुकून आने के बाद ही उसको चेंज करेंगे। अगर पीछे जबर है तो अलिफ में चेंज करेंगे, पीछे जेर है तो या में चेंज करेंगे वाव को। अगर यहाँ पे जेर होता ना तो उसको या में चेंज करते, तो ये अता बन गया। आगे क्या है? ضد عسى असा, المضارع असा क्या होता है? डिसोबीडियंस जो होती है ना, नाफरमानी, है जी ना। अता का मतलब है किसी को, किसी की इताअत करना, किसी को फॉलो करना। ठीक है ना। अता अतुल्लाही, अता अतुर रसूली, है ना। जी नहीं सॉरी, अता उल्टा बोल गई मैं। अता अतुर रसूली, अता अतुर रसूली। ठीक है, इसका क्या जी मीनिंग है? रसूल की इताअत, यानी उनको फॉलो करना। अता, अता अतुल्लाही, अता अतुल्लाही। ठीक है ना। अता अतुल्लाही का क्या मतलब है? أم इंग्लिश में बता दो।
अताअतुल्लाही का क्या मतलब है? इसका मीनिंग तो है रसूल को फॉलो करना, तो इसका क्या मीनिंग है? So اللہ کو فالو کرنا. अल्लाह को फॉलो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना ऐसे ही है जैसे अल्लाह को फॉलो करना। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाफरमानी करना, यानी उसको फॉलो ना करना, अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह को फॉलो ना करना है। ठीक है, तो ये मुब्तदा बनेगा, दोनों मिलके कौन सा मुरक्कब बन के मुब्तदा बन रहा है, और ये खबर बनेगा। पूरा मुरक्कब भी मुब्तदा बन सकता है ना। جی. तो अताअतुर रसूली कौन सा मुरक्कब बन रहा है? مرکب مرکب اضافی. हम्म, ठीक है, रसूल की इताअत, का की आ जाए ना तो वो मुरक्कब इजाफी होता है। अताअतुल्लाही, अल्लाह की इताअत है। सही है, तो इसका इसका ऑपोजिट क्या होता है? अता का असा, असा का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉलो करना। और दूसरा क्या वर्ड होगा इंग्लिश में? disobey. डिसोबे करना, नाफरमानी करना। सही है, तो अगर आप रसूल की करते हैं नाफरमानी, तो आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। ठीक है, तो आप रसूल की इताअत नहीं कर रहे, तो आप अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे। तो असा जो है ये भी माजी है और ये भी माजी है। ठीक है, ये डिफरेंट बाब से, ये डिफरेंट बाब से। इसमें 3 ही लेटर हैं, इसमें 4 ही लेटर हैं। तो इसका मुजारे क्या बनेगा? अता का uh, अला युफिलु पे डालो ना। uh, uh, so atwa yutwiu, so وہ بن جائے گا हाँ, عطا. नहीं नहीं, अता तो बना लिया ना, युतवियु बनाओ। oh युत युत yutwiu, हम्म, so इसको युतियु बनाना है ना, अता युतियु جی. होता है। अब क्या so करेंगे? واو کا کسر وہ پیچھے دے دیں گے, हम्म, سکون ڈال دیں گے واو پہ, اور وہ یا بن جائے گا. वो या बन जाएगा, तो युतियु बन गया। ये मुजारे, अल मुदारे युतियु। ठीक है, आगे क्या है? वल अमरु। वल वल ये बुक बिल्कुल वैसी ही है जैसे मदीना बुक्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मदीना बुक में आपको एक चैप्टर दिया जाता था, एक टॉपिक एक मतलब डायलॉग्स दिए जाते थे ना, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग्स दिए जाते थे। ऐसे ही था ना, बुक 8 तक हमने ऐसे ही पढ़ा है ना। جی. अब इसमें क्या है? डायलॉग नहीं दिए जाएंगे टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बल्कि आपको हदीस दी गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नरेशन, वो जो हदीस है वो आपको दी गई है। ठीक है, और उसके साथ उसके अंदर से फिर आप ये सब कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। ठीक है, ग्रामर भी جی. कर रहे हैं। समझ आ गई बात? جی. तो बिल्कुल वही स्टाइल है, बस वहां पे आपके टीचर और स्टूडेंट के डायलॉग होते थे और यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो इस तरह आप 2 चीजें पढ़ लेंगी ना। तो جی. हम्म, तो अब क्या है? युतीयु वल अमरु क्या बनेगा? so والامر اتئ. अते, हदीस में अते आया جی. है ना। फॉलो جی. करो, फॉलो करो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की बात मान लो। ठीक है, क्या मतलब होता है इताअत का? बात मानना, माँ बाप की इताअत करो। माँ बाप की भी तो होती है ना, جی. तो माँ बाप को फॉलो करना होता है, रसूल को फॉलो करना होता है, फिर अल्लाह खुद ब खुद ही फॉलो हो जाते हैं। तो अते क्या है? कैसे बनाया आपने? अमर कैसे बनाया? किससे बना? युतियु बनाया आपने, फिर क्या बनाएंगे? तुतियु so बनाएंगे। یوتیو. جی. so اس سے لاسٹ لیٹر پہ سکون ڈال دیں گے, یا کو مت کر دیں گے, हम्म, حمزہ ڈال دیں گے, اور اس پہ زبر जबर क्यों डाली है? ڈال دیں گے, जबर क्यों डाली है? بیکاز مڈل میں کسر ہے. तो या किधर गई ये वाली? मिडिल में कसरा है तो जबर नहीं डालते। रेहान, sorry
मिडिल में कसरा हो तो जेर ही डालते हैं, जबर हो या जेर हो जेर ही डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, रिजवान आप बताएं। जेर जबर होगा। क्यों क्यों जबर डाली है हमने, जेर क्यों नहीं डाली, यहाँ जेर आ रही तो जेर डालते हैं ना, जबर क्यों और बिकॉज ये बाब अफल है। हाँ, बाब अफाला से है, बाब फाल से है ये। तो जब बाब फाल आते तो फिर जेर और पेश नहीं डालते। रेहान, जी। अच्छा, अब मुझे बताओ या कहाँ गया बीच में से, यहाँ अते में तो या आ नहीं रहा, कहाँ गया वो। यहाँ से आपने अति ऊ बनाया ना, यहाँ पे सुकून हो गया, ठीक है। जी। और ये जो है इस तरह बन गया ना, ये शक्ल हो गई इसकी, ये अमर तो अते बना हुआ है ना, उसमें या तो है ही नहीं, तो अब ये अते कैसे बनेगा, अति ऊ। या को ओमिट कर देंगे। या को क्यों एमिट करेंगे, अम, क्योंकि दो साकिन आ गए हैं। जी। जब दो साकिन आ जाएं तो फिर हरफे इल्लत को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। जो कमजोर जी। होता है ना उसको गिरा देते हैं बीच में, तो अते बन जाते हैं। और ये जबर की समझ आई है, बाब फाल में जबर आती है, जब भी जबर जी। आए फिल अमर में तो आपने क्या कहना है, ये बाब फाल से है, और कहीं पे भी जबर नहीं आती। वल मस्दरू क्या है, वल मस्दरू, वल इताअतुन। हाँ ये किस वजन पे बना हुआ है, मस्दर किस वजन पे होता है, अ, रूट वर्ड ये था ना, जी। तो कौन से बाब से ये मस्दर बना हुआ है, कौन से बाब से आपने माजी बनाया था, मुजारे बनाया था, अम्र बनाया था, कौन से बाब से, अफला। अफला से। तो अफला से जब हम बनाएंगे मस्दर तो कैसे बनाएंगे, किस वजन पे बनाएंगे, इफ़ालुन। हाँ, इफ़ालुन के वजन पे बनाएंगे, ठीक है। जी। बल्कि जब हमारा ये आ जाता है ना बीच में, मैंने आपको बताया हुआ है ना, इसमें गोलता क्यों आ रही है रिजवान, कि बिकॉज इफ़ालुन में तो नहीं आती ना, इस्लाम उनमें तो नहीं आती, इंजाल उनमें तो नहीं आती, तो इसमें क्यों आ रही है, मैंने इसमें बताया। हरफ इल्लत थे। हाँ, हरफ इल्लत है, वाव है, ठीक है। जब मिडिल में वाव या आ जाए तो फिर गोल ताल आते हैं मस्तर में, तो मस्तर का वजन क्या बन जाता है फिर, इफालतुन बन जाता है, इफालतुन बन जाता है, मस्तर का वजन इफालतुन बन जाता है, तो क्या बन गया, इताअतुन बन गया, सही है। जी। इफालतुन के वजन पे, इफालुन के वजन पे आप नहीं बनाएंगे बल्कि इफालतुन के वजन पे बनाएंगे, ठीक है, याद रहेगा, इफालतुन का वजन। जी। देखे ना इफालतुन पे कैसे बना, जब आपने इफ़आलतुन के अंदर, असल में तो इफ़ालतुन है ना, जी। इफ़आलुन होता है ना, तो फिर आप गोल ता लगाएंगे तो इफ़आलतुन बन जाएगा ना, ठीक है। जब इसमें आप रूट वर्ड डालेंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा, एक तो आ, इतवातुन। ये वो है ना, हाँ, इतवा अतुन बनेगा। और इतवा अतुन, लाम की जगह हमारा ऐन है तो वहां पे हम लाम डालेंगे, ऐन डालेंगे तो ये आपका इतवा अतुन बन जाएगा, ठीक है ना। जब इतवा अतुन बन गया तो अब क्या है, पढ़ा तो नहीं जा रहा ना हमने, इसको क्या बनाना है, इता अतुन बनाना है, मस्तर बनाना है इता, तो क्या करेंगे अब, इतवा अतुन को कैसे बनाएंगे, इता अतुन में चेंज करेंगे, वही दो स्टेप्स हैं, करें, क्या करेंगे, हरफ इल्लत के ऊपर लगे जाए उसको पीछे देंगे, इफ जी। आलुन, हाँ बताएं। सो हरफ इल्लत, सो उसको पीछे दे देंगे, सुकून डाल देंगे वाव पे। हम्म, um, अब क्या होगा, उसको ओमिट कर देंगे कि दो सुकून आगे। इसको मिट करेंगे, इसको मिट जी। करेंगे, ऐसे ऐसे भी मिट कर सकते हैं और इसको अलिफ में भी चेंज कर सकते हैं ना, जी। इसको वाव को अलिफ में, पीछे जबर हो तो अलिफ में चेंज करेंगे ना, जी। तो ये दो अलिफ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है।
اور پھر ہمارے پاس یہ ہو جائے گا آگے. تو دو، اب یہاں پہ بھی آپ کا کیا ہے، الف ہے، اور یہاں پہ بھی الف ہے. تو اب کیا کریں گے، کس والے کو گرائیں گے؟ یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے، دونوں ساکن ہیں. تو کس والے کو گرائیں گے دونوں میں سے؟ یہ والا تو باپ کا ہے نا، یہ تو باب افعال کا ہے نا، اس کو نہیں گرا سکتے. جس کو آپ نے چینج کیا ہے نا، یہ واو کو الف میں چینج کیا ہے نا، جی صحیح ہے، تو اس والے کو گرائیں گے. تو پیچھے کیا رہ جائے گا، اطاعتن رہ جائے گا. تو سیدھا آپ افعالتن کے، یہ اطاعتن افعالتن کے وزن پہ ہے کہ نہیں مجھے بتائیں. اطاعتن جو آپ کے پاس بچ گیا، اس کو گرا کے، اس کو گرا دیا میں نے، تو اطاعتن بچ گئے نا. جی تو یہ اطاعتن افعالتن کے وزن پہ ہے کہ نہیں مجھے بتائیں. جو میں نے آپ کو افعالتن کا وزن بتایا تھا، افعالتن اسی کے وزن پہ ہے نا. یہ لام جی کلمہ ہے، یہ آپ کا فا کلمہ ہے. تو یہ واو الف میں چینج ہو گیا، افعالتن کے وزن پہ. افعالہ، عین نہیں ڈالنا، عین گر گیا ہمارا، وہ واو تھا نا، وہ گر گیا بھی. افعالتن کے وزن، تو وزن یاد کر لیں، اس پہ ڈال دیں، نہیں تو یہ پورا پروسیجر آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو افعالتن کا وزن یاد کر لیں. جب بھی آپ کا اجوف آئے گا، اجوف باب فعال سے، تو آپ نے افعالن کے وزن پہ، افعالن کے وزن میں مصدر نہیں بنانا، بلکہ افعالتن کے وزن پہ بنانا. افعالن میں عین بھی آ رہی ہے نا، افعالن میں عین آ رہی ہے، لیکن افعالتن میں عین نہیں آ رہی. جب آپ بناتے ہیں اسلام تو افعال ان میں عین بھی آتی ہے، لیکن جب آپ مونس بناتے ہیں تو یہ عین الف میں چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور افعالتن ہو جاتا ہے. جی تو افعالتن یاد کرنے بجائے اس کے کہ یہ اتنا لمبا پروسیجر کریں. تو یہ تو آئے گا، بار بار آئے گا نا. جیسے آپ دیکھو نا، آپ کو ہوتا ہے نا اقامتن، اقامتن کس وزن پہ بنا ہوا ہے بتائیں مجھے، کس وزن پہ ہے؟ اقامتن مصدر ہے نا باب فعال سے. روٹ ورڈ کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف قاف واو میم. ہاں، آ گیا نا مڈل میں واو. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے آپ کا افعالتن کے وزن پہ بنے گا. ٹھیک ہے نا، افعالتن، اقامتن. جی صحیح ہے. چلو، اور بھی آگے آئیں گے پھر وہ بھی کریں گے. صحیح ہے، ابھی تو یہ دو میں نے کروائے. تو اقامتن، اسی طرح تا و عین کا اطاعتن کیا بن گیا، اطاعتن بن گیا. صحیح ہے. تو یہ افعالتن کے وزن ہے، ای فا لا تن کے وزن پہ بنا ہوا. یہ عین کلمہ نہیں ہے، یہ لام کلمہ ہے، افا لا تن. چلیں آگے. عاد المرید، عاد المریدہ کیا ہوتا عاد المريض يعود ہے؟ زاره والمصدر عيادته. ابراہیم کو، اس کو کیا ہوا ریحان کو پڑھتے ہوئے؟ ریحان پڑھ رہا تھا نا، پڑھے ریحان. عاد عاد المريد يعود زاره والمصدر عيادة. ہاں. تو عاد المریدہ کا کیا مطلب ہے؟ فائل کدھر ہے عاد المریدہ؟ یہ تو فائل نہیں ہو سکتا نا. فائل کدھر ہے عادہ کا؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ نہیں جب بھی الف ہو نا، جب بھی الف ہو نا هو تو ضمیر عادة میں. ہاں نہیں، اس کو مجھے بتائیں. ضمیر تو ہوگی فائل، لیکن یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا عادہ کا؟ عادہ کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کاما کا کیا ہوتا ہے؟ ریحان، رضوان آپ بتائیں عادہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین عین واو دال. دیر سے کیوں آتا ہے تمہیں؟ عین و دال. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی آوادہ ہو گیا نا، تو پھر آپ کیا کریں گے ابھی؟
बहुत से पहले जबर है, हरफ इल्लत से पहले जबर है, तो हरफ इल्लत को किस में चेंज कर देंगे? अरे अलिफ में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे या भी हो ना, तो उसको भी हम क्या करते हैं? अलिफ में चेंज कर देते हैं। अगर बा या आ रहा है ना, रूट वर्ड बा या ऐन है और ये बा या आ बन रहा है, तो फिर भी क्या बनेगा? बा या आ को किस में चेंज करेंगे? बा आ में चेंज करेंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं जी आ रही तो बता दे, मैं छोड़ देती हूँ, बताना ही छोड़ देती हूँ। कवाला का क्या बनता है रूट वर्ड? काला कैसे बनता है? कवाला होता है ना असल में, तो रूट वर्ड तो काफ जी वो लाम है ना, जी तो कैसे बनाते हैं काला? बहुत से पहले जबर जब, पीछे हाँ हाँ, पीछे जबर पीछे कुछ नहीं देना। पीछे कैसे दोगे मुझे बताओ? पीछे खाली है कुछ? पीछे कुछ खाली है? नहीं कोई स्पेस है जहाँ पे आप वो की जबर को पीछे डालोगे? नहीं वो मुजारे में होता है, माजी में नहीं होता। माजी में तीनों पे जबर होती है, जी आधा में भी यही है। आवादा है ये, आवादा है ये। ये रूट वर्ड है ना, इन मोदाल इसका, तो अवादा बन गया। काला का ये बन गया। कामा का क्या बनेगा? काफ वो मीम, कावामा। तो ठीक है। आ, बताएं अब मुझे कैसे सीधा करेंगे इनको? पीछे करेंगे हरकत को, नहीं वो पीछे मैं कोई जगह कैसे खाली, पीछे कोई स्पेस है, तो हम क्या नहीं करेंगे? वो को सिर्फ अलिफ में चेंज कर देंगे। वो पे कोई भी हरकत होगी आपकी, वो पे कोई भी हरकत हो, चाहे सुकून ही क्यों ना हो, हम पीछे देखेंगे। पीछे जबर आ रही है तो वो को अलिफ में चेंज करेंगे, पीछे जेर आ रही है तो वो को या में चेंज करेंगे। ठीक है। जी वो से पहले जेर आ रही है तो वो को या में चेंज करेंगे। सही है। तो अब ये जी क्या बन गया? इसी तरह आधा भी बन गया, इसी तरह कामा भी बन गया। तो माजी में ट्रांसफर का कायदा नहीं होता। ट्रांसफर का कायदा काम पे होता है जब मुजारे बनाएंगे, वहां पे अपना शौक पूरा करना है। ठीक है। या वो मुंह बनेगा ना, जी इसका क्या बनेगा? ये बना है ना, तो ये असली शक्ल तो नहीं है ना। असली शक्ल क्या है? आधा का मुजारे क्या बनेगा? जैसे आ, काला, काला का क्या बनता है मुजारे? क्या बनता है काला का? यकबुलू बनता है ना। जी ये ऐसे ही बन जाता है, यफउलू के वजन पे यकबुलू बनता है ना। यकू अभी जी अपना यकूल आप ट्रांसफर वाला शौक पूरा करें यहाँ पे। वहां पे नहीं करना, माजी में नहीं करना, मुजारे में करना है। अब इस ट्रांसफर करो, यकूलू बनाओ तो इसको, सो पेश पीछे दे देंगे और इसको उसमें सुकून, सुकून दे दो, सुकून तो ये डालेंगे जी यकुलु बन गया। तो यकुलु यूज होता है ना। जी सही है। एक ओरिजिनल शक्ल होती है और एक जो हम यूज करते हैं वो वाली होती है। और इसकी ओरिजिनल क्या बनेंगे? याउदू तो यूज कर रहे हैं ना, ये याउदू तो यूज होता है ना, तो इसकी ओरिजिनल क्या बनेंगे? यफउलू के वजन पे आधा याउदू होता है ना। तो जी याउदू तो इस्तेमाल ओरिजिनल शक्ल नहीं है। ओरिजिनल क्या है? यफउलू। यफ जी यफउलू के वजन पे डालें इसको, एन वाव दाल को, ऐन वाव दाल को यफउलू के वजन पे डालें। आइन वाव दाल याउदू या वुदू। अब अपना शौक पूरा करें यहाँ पे। या सो वुदू। अब बनाए, या वुदू बनाए इसको। पेश पीछे दे देंगे सुकून डाल देंगे वापस सो याउदू बन जाएगा हाँ, वॉ के पेश चेंज करने की वॉ को जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉ के पीछे पेशी चाहिए होती है, उसकी डिमांड पेशी है, दमा ही है। ठीक है ना। तो हम उसको अब चेंज नहीं करेंगे। अगर उसके पीछे जबर होगा ना, तो फिर उसको अलिफ में चेंज करेंगे, जैसे हमने माजी में किया था, आधा बनाया था ना, उससे पहले जबर थी तो वॉ को अलिफ में चेंज कर दिया था। यहाँ पे वॉ से पहले पेशी आ रही है। यकबुलू में भी यकूलू बनाया था तो ऐसे ही था, तो तीसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा स्टेप क्या होता है? पीछे हरकत के मुताबिक इस वॉ को चेंज करना होता है। ठीक है। तो वो हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वॉ के पीछे ऑलरेडी पेश आ रही है। सही है। तो पेशी डिमांड कर रही है।
تو یہاں پر آپ کا یہ ہو گیا. زارا ہو کیا ہے؟ میننگ اس کا زارا ہو ہے. زارا ہو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زارا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی روٹ ورڈ زئی با را ہے. اس سے بھی آپ کا زارا بنتا ہے. ٹھیک ہے، ماضی. زورا بو سے پہلے زبر ہے، واو کو الف میں چینج کیا، زارا بن گیا. ٹھیک ہے، جی اور آگے ہو ضمیر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زارا ہو. اس کا یہی مطلب ہے جو عادل مریدہ کا مطلب ہے. زارا ہو عادل مریدہ کا کیا مطلب ہے؟ فائل کیا ہے اس میں؟ ہوا ہے نا. ہی وزٹڈ ٹو مریض. پیشنٹ کو وزٹ کیا. ٹھیک ہے، اس نے پیشنٹ کو وزٹ کیا. فائل ہمیں باہر نہیں مل رہا تو ہم ضمیر کو بنا لیں گے نا. تو اس نے پیشنٹ کو وزٹ کیا. مضارع کیا بنا ہے؟ یعودو بن گیا. ہم نے بنا لیا یعودو سے یعودو بنا لیا. میننگ کیا ہے اس کا؟ زارا ہو. مزارع کا مطلب ہی وزٹ کرنا ہوتا ہے نا. زارا یزورو زیارتن ہے نا. جی زارا یزورو زیارتن وزٹ کرنا ہوتا ہے نا. جی تو اب اس نے اس کا ہوا ضمیر فائل ہے، اور یہ آپ کا ہوا زارا بن گیا. اور ہو ضمیر کیا بنے گی؟ ہوا ضمیر کیا بنے گی؟ ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مریض کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ والی ہوا ضمیر اس آدھا کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے. تو یہ ہو ضمیر کیا بن رہی ہے رضوان یہاں پہ؟ ہو ضمیر کیا بن رہی ہے؟ فائل تو ہوا بن گئی نا. تو ہو کیا؟ مفعول. اتنا مشکل ہے رضوان؟ اتنا مشکل تو نہیں ہے. میں نے آپ کو بولا جب یہ چھوٹے والے ضمائر آئیں گے نا اٹیچ پرونم، تو یہ مفعول ہی بنیں گے. صحیح ہے، جی پیچھے فیل ہونا چاہیے. اگر کتابو ہو ہوگا تو تب تو مفعول نہیں بنے گا نا. کہ بنے گا؟ نہیں نہیں بنے گا. پیچھے فیل ہوگا تو یہ ضمیر کیا بن جائے گی؟ ہو ضمیر ہے نا، تو یہ کیا بن جائے گی؟ مفعول بن جائے گی. کتابو ہو میں کیا بنے گی؟ اس میں بھی مفعول بنے گی. اس میں کیا بنے گی؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ بنے گی. تو یہاں فعل کے بعد آئی ہے تو کیا بنے گی؟ مفعول بنے گی. یہاں پہ مجرور ہے، یہاں پہ منصوب ہے، کیونکہ یہاں مفعول بن رہی ہے. سمجھ آ رہی؟ جی تو جب بھی فعل کے بعد ہو ضمیر ہے، کوئی بھی آئے، ہم آئے، ہما آئے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کی کیا بنے گی؟ وہ آپ کی مفعول بنے گی. والمصدر کیا ہے؟ ایادتن. ایادتن آدھا یدود. اچھا، یہ آدھا یعودو جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہے یا مزید فی سے ہے؟ آدھا یعودو مزید فی سے ہے یا ثلاثی مجرد سے ہے؟ کیونکہ تین ہی لیٹر ہے نا. یہاں پہ 4 لیٹر تھے، تو یہ کیا تھا؟ باب فعال سے مزید فی سے تھا. یہاں پہ 4 لیٹر ہیں. ابھی یہ کس سے ہوگا؟ ثلاثی مجرد سے یا مزید فی سے؟ انقذہ مزید فی. مزید فی سے نا. روٹ ورڈ کے 3 لیٹر نون کا افزائی ہے. ٹھیک ہے، نقضہ. جب انقضہ ہو گیا تو یہ افعلہ کے وزن پہ بن گیا نا. اب اس کے جی مضارع میں کیا آئے گا؟ انقضہ. مضارع کیا بنے گا؟ یونقذو بنے گا. 4 لیٹر ہوں تو مضارع میں پیش آتی. ٹھیک ہے نا. تو آدھا کا مصدر کیا بنا؟ ایادتن. ایادتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وزٹ کرنا، عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا. جی اردو آتی ہوتی نا آپ کو تو سارے لفظ اچھی طرح سمجھ میں آ رہے ہوتے. تو عیادت جو ہے یہ کسی کو وزٹ کرنا، بیمار کو وزٹ کرنا. اور زارا جو ہوتا ہے یہ بیمار کو وزٹ نہیں کرنا ہوتا، یہ ہیلدی پرسن کو وزٹ کرنا ہوتا ہے. وزٹ کرنا ہوتا ہے. آپ وہ دونوں کے لیے آ سکتا ہے. زارا مریض کے لیے بھی آ سکتا ہے اور ہیلدی پرسن کے لیے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے عیادت جو ہوتی ہے آدھا یعودو، یہ مریض کے لیے خاص ہوتی ہے. صحیح ہے. چلیں. انقذہ فلانن پڑھے. ریحان پڑھے، ختم کریں یہاں تک. انقذ فلانا
So हम्म khallasahu wa najjahu. तो अनकज़ा का मतलब कहते हैं नून का अफजाल, कुरान में भी आता है अनकज़ा लफ्ज है ना, जी। अनकज़ा। उसने, उसमें फाइल क्या बनेगा? ये पूरा जुमला है ना एक, उसमें फाइल क्या बनेगा अनकज़ा में? uh, हुआ ज़मीर। हुआ ज़मीर। डर क्यों रहे हैं? फुलान उनको तो नहीं बना सकते ना, ये मफूल है ना। जी। हाँ, तो फाइल क्या बनेगा? और तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो ज़मीर ही बनेगी। जी। जी। या तो किसी का नाम होता तो हम वो बना देते फाइल, अनकज़ा हामिदुन फुलानन, ठीक है, हामिद ने बचाया फलां को। समझा करें बात को। यहाँ आदा में भी मरीज हुआ जमीर बनी थी, जारा में भी हुआ जमीर बनी थी। तो जब आगे आपका मरफू इसम नहीं होता तो फिर हुआ जमीर को बनाते हैं ना, तो यहाँ मरफू इसम नहीं है। उसने बचा लिया, ही सेव्ड समवन। अब इसका मीनिंग क्या होगा? खल्लसा हो, खल्लसा का मतलब क्या है कि वो नज्जा, हु का क्या मतलब होता है? नज्जा ना, कुरान में भी आता है ना, नज्जई ना हम। क्या मीनिंग होता है नज्जा का? अम सेव करना, जी वो किसी को सेव करना, बचा लेना। खलासा का भी वही मतलब है, बचा लेना। खलासी दिलवा देना किसी चीज में। कोई आदमी है प्रिजन में है, ठीक है, आपने उसको वहां से निकाल लिया, कोई मुसीबत में है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आपने उसको वहां से निकाल लिया, हॉस्पिटल ले गए, तो अनकज़ा फुलानन हो गया ना। जी। खलासा का भी यही मतलब होता है कि आपने उसको उस तकलीफ से निजात दिलाई। खलासी, खलासी बोलते हैं उर्दू में। अच्छा, आगे पढ़े रिजवान। अबुल, अबुल, अबुल कासिमी हम्म, कुन्यतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्म, क्या मतलब है? अबुल कासिम क्या है? अबुल कासिमी क्या है? किसकी कुन्नियत है? पुराने जमाने में एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही था ना। जी। और एक कुन्नियत होती है। कुन्नियत क्या होती है? निक नेम होता है, ठीक है ना। जैसे जी। उनके बेटे का नाम कासिम था, है ना। कासिम तो फौत हो गए थे ना, है ना। जी। तो उनकी कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। जैसे अबू दर्दा होता है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अबू दर्दा उनका नाम है, बल्कि उनके बेटे का नाम दर्दा है, दर्दा। अबू हुरैरा, तो वो कुनियत होती है, उस वक्त नाम से नहीं पुकारते थे। अबू हुरैरा का नाम अब्दुर्रहमान था, असली नाम। इसी तरह अबू बकर का नाम कुछ और था, ठीक है। तो वो क्या होती है, जब अबू लगाते हैं तो वो भी सही है ना। उम्मे मरियम भी कह सकते हैं, है ना। उम्मू फातिमा भी कह सकते हैं। कोई भी जैसे हम माँ का भी कभी नाम लगा लेते हैं ना, तो वो फिर क्या होता है? माँ की तरफ निस्बत। तो कुन्नियत, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत क्या थी? ये कुन्नियत क्या बन रहा है मुझे बताएं? अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुन्नियत क्या बन रहा है? कुनियत, कुनियत क्या है? अम यहाँ जेर आ मुदा रही है। मुजाफ, मुदा मुजाफ बन रहा है, अलिफ लाम और तनवीन से खाली है ना। जी। तो फिर क्या बन जाता है? मुजाफ बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? मुजाफ इलैह बन जाएगा ना। जब भी देखें आपका कोई इसम है और वो अलिफ लाम और तनवीन से खाली है, ठीक है, इसम होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। फेल में तो तनवीन अलिफ लाम वैसे ही नहीं आता ना। तो अगर इसम है और वो अलिफ लाम से खाली है और तनवीन से भी खाली है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? मुजाफ बनाएंगे, अगले वाले को जेर दे के पढ़ेंगे। कुन्नियतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे क्या है? अम अस्लमा दखल फिल इस्लामी वल मुदारियु युस्लिमु। असलमा कौन से बाब से है? अम क्या वजन बनता है इसका?
अफला अफला बाब से है ना, अनकजा जी अफला बाब से था ना, ठीक जी है। तो ये सब क्या है, ये अफला बाब से बन रहा है ना, माजी है ना, आखिर में जबर आ रही है ना, तो अफला जी बाब से बन गया। तो ये मुजारे क्या है, युस्लिमु बन गया फिर, असलमा युस्लिमु युफ इलू के वजन पे। अब यहाँ पे देखें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। युफ इलू पे आप जब अपना सीन लाम मीम डालेंगे तो युस्लिमु। चेंजिंग क्यों नहीं आ रही यहाँ पे, जैसे रेहान ने पहले चेंजिंग की थी ऊपर, तो यहाँ पे चेंजिंग क्यों नहीं आ रही, नमाजी में आ रही है ना मुजारे में आ रही है, क्यों नहीं आ रही? बाप तो वही है ना, उसमें चेंजिंग आ रही थी, उसमें क्यों नहीं आ रही? हम कब आती है चेंजिंग? चेंजिंग करने की कब, इलाज की जरूरत कब मजहूल पड़ती है? मजहूल मजहूल कर हाँ, बना है। हरफ इल्लत जो होता है ना, जब वो आपका हरफ इल्लत आ जाता है ना रूट वर्ड में, इसका रूट वर्ड क्या है? रूट, सीन लाम मीम। तो ये तो बाप का है ना, हमजा अनजला है ना, जी। ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये तो बाप का है ना। बाप जब इफाल में लाते हैं तो माजी में, अगर आप सुलासी मुजरद में हो तो ये सलीमा होता है, जब उसमें लाते हैं तो वो असलमा हो जाता है। अनकजा में भी ऐसे ही था, अनकजा यन युन के जू हमने बनाया, कोई हमने चेंजिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि रूट वर्ड में नून काफ जाल में कोई हरफ इल्लत नहीं था, ठीक है। यहाँ हरफ इल्लत था, यहाँ पे हरफ इल्लत था रूट वर्ड में, इसलिए हमने मुजारे में चेंजिंग की थी, माजी में भी चेंजिंग की थी। अतवा बना था ना, अतवा बना जी था ना, तो इसमें अवादा बना था ना, तो फिर हमने चेंजिंग की थी। कोई सिक होगा तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा ना, जी उसको ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। इल्लत का, रूट इल्लत का क्या मतलब होता है? सिक लेटर्स, है ना। जब रूट वर्ड में सिक लेटर आएगा तो फिर हम उसका क्या करेंगे, उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका। लेकिन यहाँ पे अब आपका नहीं है, तो फिर हम उसका जब बनाएंगे तो अनकजा को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको जी थोड़ी जबर जगह पीछे खाली देखेंगे तो इसको इधर कर देंगे। हरफ इल्लत पे जब हरकत होती है ना, तो तब उसको पीछे करते हैं, क्योंकि वो अपना लगेज उठा नहीं सकता, बीमार होता है वो। हेल्दी लेटर को क्या है, अगर उसके ऊपर कुछ आ रहा है तो, अगर यहाँ पे सिक लेटर होता है तो फिर उसकी हरकत को पीछे करते हैं, अभी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये हेल्दी लेटर है, इसको क्या है मसला, इसको तो कोई मसला नहीं है, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है मेरी बातें कि नहीं आ रही? कुछ जी हूँ जी हाँ करो, बोला करो। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर भी असलमा में भी सीन लामीम रूट वर्ड है, तो उसमें भी सारे लेटर हेल्दी हैं। सिक लेटर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? वाव या वाव और या ही होते हैं, बस दैट्स इट। अगर ये आपके रूट वर्ड में आ गए तो फिर आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, सही है। जी। ट्रीट लेकिन अगर हेल्दी लेटर आ रहे हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, आपने युस्लिमो बनाया, कुछ नहीं किया, असलम बनाया, कुछ नहीं किया। अब ये थोड़ी है कि लाम का उठा के पीछे हरकत दे देंगे, लाम तो हेल्दी लेटर है, उसको तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, सही है। तो जब वो आएगा तभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये समझ आई आज बात की नहीं आई मैंने जो बताई है? ट्रीटमेंट जी कब जी देते हैं, जब रूट वर्ड में हरफ इल्लत आता है। जब हेल्दी लेटर आते हैं तो फिर नहीं देते ट्रीटमेंट, फिर जरूरत नहीं होती। अता हमें भी रूट वर्ड की जरूरत, हरफ इल्लत आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट, किसी को कम ट्रीटमेंट से काम चल जाते, किसी को ज्यादा ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, ऐसा ही है ना। किसी में दो दो तीन तीन स्टेप होते हैं, किसी में एक ही स्टेप में हो जाता है। इफालातुन में मैंने इफालातुन बनाते हुए कितना लंबा किया था ना प्रोसेस, कितना लंबा ट्रीटमेंट था, है ना। लेकिन मैंने फिर जी आपको बता दिया कि उसको इफालातुन के वजन पे बना लिया करो। इफालातुन आसान बता दिया ना हल, कि इस पे डाल दिया करो। तो इतातुन ता वो ऐन को जब इस पे डाला तो क्या बन गया, इफालातुन में इताअतुन बन गया। इसकी जगह आपने ता लगाई, उस पे जबर डाली, अलिफ खाली आगे लगा दिया, ये आपका लाम जो है ये आपका ऐन है।
تو یہاں پہ لگایا اور یہ اطاعت لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لام کلمہ یہاں پہ عین ہے نا، یہ فا ہے، یہ واو ہے، یہ واو جو ہے یہ آپ کا فا عین اور یہ لام ہے، تو یہاں آپ نے لام لگایا، لام عین لگایا، یہاں یہ والا الف میں چینج ہو گیا تھا، یہ جو بیچ والا تھا یہ عین الف میں چینج ہوا، بہرحال اس وزن پہ آپ نے ڈال دینا ہے۔ تو ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کا حرف علت روٹ ورڈ میں آتا ہے، نہیں آتا ہیلدی ہے، دربا یدربو ادرب، کسی کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ کیونکہ نہیں دربا میں سارے لیٹر ہیلدی ہیں، ماضی بنائے مضارع بنائے کوئی ضرورت نہیں ہے، جلسا خرجا کوئی ضرورت نہیں، جیسے ہی آپ کا وہ یا والا جیسے با اور آپ کا یا آ گیا اور عین آ گیا، اب یہ کیا بنے گا؟ با یا آ بنے گا نا، تو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے نا کیونکہ حرف علت آیا ہے، تو اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ ماضی کیا بنے گا؟ با یا آ کو کس میں چینج کریں گے؟ حرف باء ہاں حرف علت سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف میں چینج کر دیں گے، چاہے واو ہو چاہے یا، اس کو الف میں، پیچھے زبر آ رہی ہے اس کو جی الف میں چینج کریں تو با آ بن جائے گا۔ اسی طرح آپ کا یہ بن جائے گا مضارع، مضارع کس وزن پہ آئے گا؟ با یا آ، با آ یبی او ہوتا ہے نا، کون سا باب بنتا ہے؟ با یبی او، کون سا باب بنتا ہے یبی او؟ با ضرب یبی او يضرب ہے، ضرب يضرب ضرب یضرب، تو یبی او جو ہے یہ تو وہ ہے نا، اوریجنل تو نہیں ہے نا، یہ اوریجنل نہیں تو بنے گا کس وزن پہ؟ ضربا یضربو، تو یضربو کے يبيع وزن پہ ڈالیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ يبيع یبجیعو، تو اصل اوریجنل کیا ہوگا؟ یبجیعو ہوگا نا، جی ٹھیک ہے، اور یبجیعو کو پھر آپ نے ٹریٹمنٹ دینا ہے کیونکہ حرف علت آ گیا ہے، تو اس کے نیچے زیر ہے یبجیعو، تو اس کی زیر کو پیچھے کریں گے اور پھر اس کو سکون دے دیں گے تو یہ یبیو بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی حرکت چینج کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یا سے پہلے زیر ہوتی ہے اور یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، آلریڈی آ رہی ہے، تو ضرورت نہیں ہے، جیسے یقبولو میں ضرورت نہیں ہے نا، وہ سے پہلے پیش آتی ہے تو ضرورت نہیں، لیکن اگر حرکت دوسری آ رہی ہے کوئی اور تو پھر چینج کرنی پڑے گی، صحیح ہے، وہ کو زبر میں وہ کو الف میں چینج کرنا پڑے گا، یہ یا کو زیر۔ اچھا اب آگے دیکھیں، یہ ہو گیا اسلمہ، یہ بھی ہو گیا دخل فی الاسلامی۔ اسلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے اسلمہ کا مطلب کیا ہے تو دخل فی الاسلامی، ٹھیک ہے نا، جی اس کا فائل کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے نا، تو فعل کا فائل کیا ہے؟ هو زميل ہوا ضمیر ہے، اور فی الاسلامی کیا بن جائے گا؟ مفعول مفعول تو نہیں بن سکتا رضوان، متعلق متعلق بنے گا، مفعول تو منصوب ہوتا ہے نا، جی یہ دیکھو نجا ہو تو یہ مفعول ہے نا، خلصہ ہو میں یہ مفعول ہے نا، یہ مفعول ہے نا، یہ تھوڑی بنے گا جار، والمضارع کیا بنے گا؟ اسلمہ، ٹھیک ہے، اسلمہ، أسلم يسلم اور مصدر کیا بنے گا؟ إسلاما اسلامن یا اسلامون، اب اس میں کوئی چینجنگ کی ضرورت نہیں کیونکہ لیٹر کیا ہے؟ ہلدی ہے، تو آپ کو افعالت ان کے وزن پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ان آرام سے بن جائے گا افعال ان کے وزن پہ، کیونکہ آپ کے ہیلدی لیٹر ہے نا سین لام میں، اسلام، اور امر کیا بنے گا؟ امر کیا بنے گا؟ أم حدیث میں پڑھا تھا أسلم نا، اسلم بن جائے گا، اسلم، انزلہ ینزلو انزل، انزالن بن جائے گا مصدر، نون زئی لام سارے لیٹر ہیلدی ہیں، اب یہ تو پتہ ہے نا کہ کون سے لیٹر ہیلدی ہیں کون سے نہیں ہیں، یہ تو پتہ ہے نا، دو لیٹر صرف سکھ لیٹر ہیں باقی سارے ہیلدی ہیں، چل تھوڑا سا اور پڑھ لو 5 منٹس، اضاحات نحویت، پڑھو،
فتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده هنا الجملة يعوده حال. यऊदुहु क्या बन रहा है? हाल बन रहा है। ये पूरा जुमला है, इसमें फेल भी है, फाइल भी है और मफूल भी है। फाइल क्या है इसमें? यऊदु में आधा यऊदु से है ना। फाइल क्या बनेगा? फाइल या तो जमीर होती है या कोई इसम होता है, मरफू होता है। अब इसम तो कोई आ नहीं रहा, तो यऊदु में फाइल क्या है? أم युस्लिमु। فهو हुआ युस्लिमु में क्या है? युस्लिमु में फाइल क्या है? अस्लमा में क्या هو है? हुआ ही है ना, तो इसमें भी जी हुआ ही है। जी मुजारे में हुआ नहीं होती? होती है ना पहले सिगे में, माजी में भी जी होती है हुआ। ठीक है ना। और फिर यऊदु, उसने विजिट किया उसको, उसने विजिट किया उसको। तो हुआ की जमीर किधर जा रही है फिर? किसने विजिट किया? किसने विजिट किया था उस बच्चे को? أم नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विजिट किया था لا ना। لا जी प्रॉब्लम तो हुआ की जमीर पीछे ही जाएगी ना, आगे तो नहीं जाएगी, पीछे जाएगी ना। जी तो पीछे नबी की तरफ आ रही है। सही है। तो यहाँ पे ये फेल है, ये फाइल है और ये मफूल है। फ़अता तो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास, यानी उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विजिट किया उसको। हुना अल जुमला तो यऊदु वो हाल बन रहा है। तो हाल जो होता है वो वन वर्ड भी हो सकता है, मुफरद भी हो सकता है। वन वर्ड मुफरद ही होता है ना, मुफरद भी हो सकता है और जुमला भी हाल बन के आ सकता है। जुमला हालिया होता है ना। तो ये पूरा जुमला हाल बन रहा है। किसका हाल बन रहा है? किसका हाल बन रहा है? नबी أم नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बन रहा है या लड़के का हाल बन रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बन रहा है। वो जी आए उसके पास, इयादत के लिए आए। अच्छा, अल हालू क्या होता है? अल जुमला तो तहताजू, हाल एक जुमला होता है, तहताजू मोहताज होता है वो, इला राबितिन यरबितुहा। ठीक है ना। तो जब भी हाल होता है ना, तो हाल के अंदर एक जुमला होता है। हाल एक जुमला होता है जो कि मोहताज होता है किसका? एक जमीर का, जो लौटे जुलहाल की तरफ, जुलहाल की तरफ लौटे। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कौन सी जमीर है जो लौट रही है? हुआ लौट रही है। जी ठीक है ना। किधर लौट रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका हाल बताया जा रहा है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उनकी तरफ लौट रही है। तो अभी यहाँ पे बता वहाज़ राबितु। तो जुमले में चाहे इसम मौसूल आए उसके जुमले में, या मुब्तदा की खबर आए उसके जुमले में भी एक जमीर होती है जो कि राबित का काम करती है। दोनों में कनेक्टर का काम, राबित का मतलब कनेक्टर होता है। ठीक है ना। तो वो कनेक्टर का काम कर रही होती है। तो हाल के अंदर एक जमीर होगी, जब जब जुमला हाल होगा तभी जमीर होगी। अगर हाल जो है वो वन वर्ड आ रहा है तो उसमें जमीर नहीं होगी। ठीक है। जब जुमला हाल बनता है, ये जुमला पूरा है ना, उसने विजिट किया उसको, ये पूरा सेंटेंस है, ये हाल बन रहा है। तो इसके अंदर जमीर है जो कि जुल्हाल की तरफ, बिसाहिबी हा का मतलब है कि जुल्हाल की तरफ लौट रही है। ठीक है। तो फिर वो जमीर जो होती है वह हाजर राबित, हाजर राबितु, वो राबित जमीर कहलाती है। फिर हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी काफी फिर ज्यादा हो जाती है। सही है। इसी जुमले को कर लेते हैं। अताहु तो आए। अता का मतलब यहाँ पे अता जो है वो कैसे लिखेंगे? रूट वर्ड क्या होगा अता का? अता का रूट वर्ड क्या होगा? ये माजी है और ये उसके अंदर ही फाइल है। फाइल इसका अन्नबीयू है, बाहर आ रहा है। चौथे और पहले सीखे में बाहर भी आ जाते हैं ना। तो जी अता कैसे लिखेंगे यहाँ पे?
रूट वर्ड क्या है अता का? हमजा, ता, और आगे क्या लगाऊं? रूट वर्ड 3 होते हैं ना, जी। अलिफ लगाऊं? अलिफ चेंज हुआ होता है, अलिफ कभी रूट वर्ड नहीं होता। अलिफ जी। कभी रूट वर्ड नहीं होता। अलिफ क्या होता है, हमेशा दूसरे वर्ड वो या या से चेंज होके आता है। तो यहाँ पर वो आएगा या या आएगा, मुझे बताइए रूट वर्ड में। हमजा ता या रूट वर्ड है ना। जी। क्या मीनिंग है इसका? कम। कम। इसको लिखेंगे कैसे, माजी को? अता लिखेंगे ना, अता या लिखेंगे, ठीक है, जी। अता या। तो ये अता या जो है, जब इसके आगे जमीर लगानी थी तो इस या को अलिफ में चेंज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे हम जमीर लगाते तो कैसे होता, बताएं? आता या ऐसे ही होता तो कैसा लगता है ना, लफ्ज कितना अच्छा तो नहीं लग रहा है ना। तो इस या को अलिफ में चेंज किया तो ये अता बन गया। ये वैसे ही चेंज किया खूबसूरती के लिए, ठीक है, खूबसूरती के लिए, ताकि लफ्ज को अच्छा बने, ब्यूटीफुल हो जाए। तो हमने इसको क्या किया, आगे जमीर लगा दी, अताहू बन गया। इसका अता का फाइल क्या है, या तो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। तो आगे इसमें मरफू आ रहा हो तो वो वाला फाइल होता है। तो ये फाइल बन गया, ठीक है। और ये हु जमीर क्या है, क्या बनेगी? फाइल। वो भी फाइल बन रही है, और ये नबी भी फाइल बन रही है। ये कब मैंने कहा है कि ये फाइल बनती है जमीर, मुझे बताएं, मैंने कभी कभी बताया कि ये फाइल बनती है अटैच प्रोनाउन? नहीं। आइंदा नहीं बोलना, मैंने ऊपर भी अभी समझाया था, उस वक्त तब सुन नहीं रहे थे। यहाँ मैंने बताया था ना जारा हूं में, कि ये जमीर जो है मफूल बन रही है ना। जी। ख्याल रखते हैं ना। मुझे फिर लगता है जैसे मेरे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा आपको, है ना, हालांकि आपको पता होता है, बेवकूफियां करते हैं आप लोग, सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो ये अता जो था, ये अता या था, और ये अता बन गया। लिखने के लिए आगे जमीर लिखनी, अगर जमीर ना लिखनी होती तो फिर तो ये अता ही लिखते ना, उसको ऐसे ही लिखते, अता या ही लिखते। लेकिन अता याती लिखते नहीं, आप देखें अता लिखते हैं, अता या, और फिर आप क्या लिखते हैं, या अता हो गया, या पे तो जबर डालते नहीं, अता हो गया, और याती मुजारे बनाते हैं, बनाते हैं ना, कि नहीं बनाते? जी। याती बनाते हैं, अता याती। लेकिन यहाँ पे मैंने अलिफ में इसलिए चेंज किया है या को, कि आगे जमीर लगानी है। अगर जमीर ना लगानी हो तो उसको या को लिखते रहने, लिखे रहने दें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, जो आपको पता होनी चाहिए, कि यहाँ पे अलिफ कहाँ से आया, रूट वर्ड तो नहीं हो सकता। हमजा ता अलिफ रूट वर्ड तो नहीं होता ना, क्या होता है? अलिफ नहीं। तो कभी रूट वर्ड होता ही नहीं। सही है ना, तो ये चीजें याद रखनी कि अलिफ कभी रूट वर्ड होता ही नहीं, तो हमजा ता या अलिफ तो हो ही नहीं सकता, हमजा ता या होगा, या अलिफ में चेंज हुआ है, ठीक है। तो रूट वर्ड नहीं आएगा तो फिर आपको देखिए वो मुजारे में वापस भी आ जाता है, फिर जो भी रूट वर्ड होता है ना मुजारे में वापस आ जाता है। हमजा ता वो तो नहीं है ना, हमजा ता या है, तो वो फिर आपका ये हो गया। तो ये यहाँ पे जुमला जो था, यऊदुहु फ़अताहुन नबिय्यु, तो आए उसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हाल में कि वो विजिट कर रहे थे उसको। इसका तर्जुमा क्या करेंगे, वाइल ही वाज विजिटिंग हिम, वाइल, या इस हाल में। और क्या मीनिंग कर सकते हैं, वाइल ही लगाते हैं ना इस हाल में के लिए, जी। ठीक है, इस हाल में कि वो विजिट कर रहे थे उसको। विजिट का मतलब है उसकी, विजिट, एक तो विजिट होता है ना, जैसे आप हमारे घर करते हैं, हम आपके घर करते हैं, ठीक है, ये विजिट हो गई। एक होती है मरीज को पूछने के लिए जाना, कोई आदमी बीमार है, सिक पर्सन है, उसको हॉस्पिटल में जाके पूछते हैं, या उसके घर में जाके उसका करते हैं, तो वो होता है या उदूहु, इयादत करना उसकी, उसको विजिट करना है, लेकिन उसकी इयादत करने के लिए, कि वो बीमार है। तो इस हाल में कि वो इयादत कर रहे थे उसकी, यानी उसके विजिट कर रहे थे, ठीक है।
हुना अल जुमलतु यऊदुहु हालुन, ये जुमला क्या है पूरे का पूरा, इस जुमले, ये बड़ा जुमला है, इस जुमले के अंदर ये वाला जुमला जो है ये हाल बन रहा है। ये फेल है, ये माजी है, ये फेल माजी है, ये फाइल है, और ये मफूल है। एक जुमला तो यही हो गया, ठीक है। और दूसरा जुमला जो है वो हाल बन के आ रहा है। हुना का मतलब समझते हैं ना, हुना अल जुमला तू याउदु हालुन अल हालुल, अब हाल की तारीफ कर रहे हैं। हाल क्या होता है? अल हालु अल जुमला तू तहताजु इला राबितिन यरबितुहा बिसाहिबिहा। तो हमेशा क्या होता है हाल के अंदर जो है एक जमीर होनी चाहिए। यऊदू एक जुमला बन के हाल आ रहा है तो उसके अंदर एक जमीर होनी चाहिए जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलहाल की तरफ जाए। साहिब क्या है? ये साहिब है ना, ये जुलहाल है ना जो उसकी तरफ जाए। और उस जमीर का नाम क्या होता है? वह हाजर राबितु। मैं आपको सिर्फ रीडिंग भी करा सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा चीजों को समझ लेंगे ना, कि हाल जब जुमला होता है तो उसमें एक जमीर होती है जो जुलहाल की तरफ लौटती है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले, कोई नई बात नहीं है। चलो ओके, दुआ करें। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। फी अमान अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।